Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, Jai Shri Krishna to everyone who joined us this morning. Today is a Shukrana Day, and we are very honored to have Narinder ji with us. आज आपने भूल गए नरेंद्र जी डालना अपना हैट डालना भूल गए आपको सामने anyway as today's a lot of programs are going on in the town and we have the Ganesh आई थिंक गणेश चौथ का 3 दिन का है उनका तो नरेंद्र जी इन्वॉल्व है उनके साथ तो मैं कभी स्टिल he was kind enough to come although he's involved with them but he came today because we have a very special topic today we have going to touch base हमने पहले भी किया हुआ है लेकिन it's after a long time that we are going to touch that subject तो नरेंद्र जी would like to do आप प्रे करना चाहते हो for world peace Yes. and then we can start. Okay, welcome to this program, everyone. Thank you for joining. Thank you. Thank you, Veena. And first of all, I want to compliment you for even in every situation you run this program, and I am with you all the time. Yes, And let us pray our friendship be cemented forever. yes. Having said that, we start with the word prayer, and then the topic is very timely topic, and we try to conclude in a very precise manner. Yes. ॐ विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव ॐ हरिण्यगर्भा संवृत्ताग्रे भूतस्य याता पतिरेके आसीत् सदाधार पृथ्वी ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्योर्मा अमृतं गम्यम् ॐ शान्तिः 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 ॐ By the invocation of the divine mantras, we are seeking the blessing of the Almighty for world peace. A lot of bad things are happening, and it is our responsibility to revisit the people who are at the helm of the affair. They should revisit these issues and try to bring peace, so the suffering should be diminished. Jai Shri Krishna. Back to Veena. I agree. There's too much suffering going on, and तो आज का सब्जेक्ट जो है आई वुड से नरेंद्र जी ने हमने पहले भी टच किया हुआ है लेकिन इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैवंट टच्ड इट एंड it's called the law of karma. I think that was a long time, couple of maybe a few months ago or by last year हमने किया था touch. So we should continue with that as much as we can, and then if I have to follow up later on, we can do some other time. But today we'll do that, Narendra ji, and also a little bit about what's the connection with the reincarnation, both the things. Said it right. We are revisiting this issue. Yes. We had discussed last year also. Yeah. But since it's very important and it's a practical wisdom
relating to day-to-day lives. That's why we thought that it's imperative to revisit this issue and bring the awareness in the masses, in the community. They should change and they should change and they should change. So the law of karma, according to the wisdom of Srimad Bhagavad Gita, is of three types. One is karam, akaram, and vikaram. Karam is the action, and akaram is where the concept of doership is eliminated. जिसमें हम मैं कहते हैं मैंने किया. And the third category is karam, akaram, vikaram is the prohibitive actions. Those acts which are anti-dharma, value system of this creation. Any and all acts which relate to that category, that is very bad. And people who do and who are caught, they are put in the prison. And all over the world, there are prisons are fully full to capacity. So let us understand the intent and motive of your action decides the quality of your action. जो काम भी आप करते हो उसके पीछे आपका भाव क्या है, चाहते क्या हो आप. अगर आपका भाव ठीक है तो एक्शन इज राइट. अगर भाव गलत है, मोटिव गलत है एंड इंटेंट गलत है, तो दैट एक्शन इज नॉट गुड. दिस इज वन कैटेगरी. सेकंड इज whatever we do for Bhagwan and of Bhagwan and by Bhagwan. The concept of doership is eliminated. आप ये कहना छोड़ देते हो कि मैं कर रहा हूँ. आप यही करोगे कि ये वाहे गुरु की मर्जी है, वाहे गुरु जो चाहेंगे ठीक करेंगे, और वाहे गुरु का जो भी इस एक्शन का रिजल्ट होगा वो वाहे गुरु का प्रसाद है. तो जब ऐसी भावना हो जाती है तो आपके एक्शन ठीक हो जाते हैं. आपके एक्शन ठीक है. ऐसी भावना में किए हुए एक्शंस जन्म मरण की चक्की से छूट जाता बंदा. निष्काम कर्म जो है, सेल्फलेसनेस भाव से जो कर्म हम करते हैं, वो आपको इट गिव यू द स्ट्रेंथ टू गो इन द राइट पाथ वेयर देयर इज द सॉल्वेशन ऑफ योर जर्नी. ये आना जाना नहीं पड़ता फिर. And the third action is prohibitive actions, which are illegal, immoral, unethical. So let us understand further, there are three states of mind also. सात्विक, राजसिक एंड तामसिक. हमारे माइंड की तीन स्टेट्स हैं. इन तीन स्टेट के अंडर रिएक्ट. अगर आपके माइंड की स्टेट सात्विक है, then your actions are superior. That is what the concept of akaram. Then you are doing everything for Vaheguru, by Vaheguru, of Vaheguru. And that is the definition of democracy also. Government of the people, by the people, for the people. So, and the third category, which is very dangerous, उसमें जो लोग चले जाते हैं उनकी स्टेट जो माइंड है वो तामसिक स्टेट ऑफ माइंड है. तामसिक स्टेट ऑफ माइंड. And I will give you the litmus test of these three states of mind. According under the jurisdiction of these three states, we act daily. In our, because mind is ours, everybody's mind is their own. It is in their body. So there is no blame. It is your responsibility कि किस state of mind की मैं practice करूं. Because accordingly you will act. जैसे, let me give you the example of the sattvic state of mind. In that state of mind, if अगर आपके mind की ये state है, तो आप में compassion होएगा. Compassion होएगा. Second,
आप में एम्पैथी होएगी. You will know where the shoe pinches of others, not ours. And the third litmus test is selflessness. जो भी काम आप करोगे उसमें सेल्फ मोटिव नहीं होगा. एंड आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. गुरुद्वारे में मैंने $1,000 डोनेट किया, राइट? अच्छा एक्ट है, वेरी गुड एक्ट. लेकिन मेरी भावना ये, मेरी जो अंदर इंटेंट है वो ये है कि अगर कपूर साहब वहाँ बैठे हुए हैं तो वो भी देख ले, और मेरे जो फ्रेंड हैं या और गैदरिंग जो है वो देख ले कि मैंने $1,000 का दिया है. लेकिन अगर आपने चुप करके डाल दिया, मत्था टेक दिया, हे वाहिगुरु जी आपका ही था, मैंने आपको दे दिया, तो फिर आप लोगों को नहीं देखोगे, किसी ने मुझे देखा कि नहीं देखा. लेकिन ऐसा लोग करते नहीं. $1 डालना है तो चुप करके डाल देते हैं. देन दे डोंट केयर. अगर $2,000 डाल दें, दे मेक श्योर इस गैदरिंग में पीपल नोटिस मी कि मैं क्या कर रहा हूँ. तो एक्ट तो आपने अच्छा किया, लेकिन इंटेंट एंड मोटिव इज नॉट प्योर. सो दिस एक्ट, सात्विक स्टेट ऑफ माइंड, इट इज ट्रांसफर टू राजसिक स्टेट ऑफ माइंड. क्योंकि आपके माइंड की स्टेट राजसिक थी. यू आर सेल्फिश इन सम वे. यू आर सेल्फिश. काम अच्छा किया लेकिन सेल्फिश मोटिव से किया. सो दिस good act slips into the jurisdiction of rasic state of mind. So I give you the very clear definition that sattvic state of mind, there are 3 tests. ये हमने अपने आप अप्लाई करने हैं कि मैं कैसे मेरी स्टेट माइंड की क्या है. तो अगर आपके स्टेट माइंड की है ये सात्विक स्टेट ऑफ माइंड, तो आप में कंपैशन है. कंपैशन है आपका दया भाव है आप में, जानवरों के साथ, लोगों के साथ, इधर उधर सब कंपैशन है. आपको ईश्वर वाहिगुरु दिखाई देते हैं इस भावना से, जब आप में कंपैशन होता है. सेकंड, आप में जो वो एम्पैथी आ जाती है. किसी का दुख आपका अपना दुख हो जाता है. जैसे मदर टेरेसा थी. पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, बट एक क्वालिटी थी कि लेप्रोसी के पेशेंट्स को अपने हाथों से ट्रीट करना. आप जरा सोच के देखो, आदमी 1 मील दूर भाग जाता है, लेकिन उन्होंने किया. तो उसको कहते हैं एम्पैथी. थर्ड स्टेट होती है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं. जो भी मेरा एक्ट है वो मेरी पूजा है. वर्क इज वर्शिप. इट दैट सेइंग कम्स इनटू दिस कैटेगरी. एवरीबॉडी कैन नॉट से ओ वर्क इज वर्शिप. नो भाई साहब, आप तो वर्शिप कर ही नहीं रहे. तो वर्क, व्हेन वर्क बिकम्स वर्शिप, जो स्टेट ऑफ माइंड इज सात्विक. कोई भी हो, छोटा मोटा काम, ये नहीं कि बहुत बड़ा काम हो, बिकॉज वी आर लिविंग विद स्मॉल एक्ट्स. स्मॉल एक्ट्स, उसी का कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट होता है वो फिर हमारे कार्मिक फिलॉसफी में जाता है. तो दिस इज सात्विक स्टेट ऑफ माइंड. राजसिक स्टेट ऑफ माइंड के लिटमस टेस्ट है सबसे बड़ा कि वी आर ऑलवेज सेल्फिश. Self is more important than anything else. So whatever I do, it is for me, by me, of me. मैं अपने लिए करता हूँ, अपनी दुनिया क्रिएट करता हूँ, अपने घर बनाता हूँ, अपनी कारें लेता हूँ. मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है. तो अपना ही अपना जिसको हम कहते हैं मैं, ये मैं की भावना से जो काम होते हैं वो राजसिक स्टेट ऑफ माइंड है. जिसकी ये है, he or she does not care कि दुनिया क्या कहेगी. वो अपने में लगा हुआ है, अपने में लगा हुआ है. सो इसमें सुख है, दुख है, जिसको हम भावसागर कहते हैं. भावसागर कोई समुंदर नहीं. इट्स नॉट अटलांटिक ओशन एंड आई मीन पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन. दिस इज द भावसागर, जिसमें सुख है, दुख है. इस स्टेट ऑफ माइंड में
we work very hard and we put a majority of our time in this state of mind to acquire things, status, popularity. इसी में जिसकी अब ये स्टेट ऑफ माइंड है तो उसमें दुख है, सफरिंग है, राइट, जेलसी है, कंपटीशन है, कंपैशन पोषण कोई नहीं होता इसमें। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में जो लोग हैं वो जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, किसी के लिए नहीं करते। तो इसको कहते हैं भाव सागर। देखो, मैंने एज ए गुड ह्यूमन बीइंग मेरे मन में एक डिजायर आई कि आई एम ड्राइविंग द कार, लेकिन एक कार जूम करके मेरे साइड से निकली, बड़ी अच्छी कार लगी। तो अच्छी भली मेरी कार थी, मैं ड्राइव कर भी रहा, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा आ गई कि लेट मी गेट दिस कार। सो वेर एवर आई एम गोइंग, माई माइंड इज गेटिंग दैट कार। तो घर आ गए, तो देन आई रिसर्च्ड and got full information, talked to the dealer, and the car was expensive. So I applied for the loan through the dealer. For some reason, my loan was not approved. So dealer said, sir, this is the report of your credit history. So it is not mine, it's yours. So I cannot go ahead. So now इसमें दो चीजें हैं। अगर आपको आपका लोन अप्रूव हो जाता तो आप घर आते कार लेकर, आप लोन डिसअप्रूव हुआ तो आप खाली हाथ आ रहे। घर आते विद ए कार तो आप सुखी, घर आए विदाउट कार तो अब आप दुखी। तो सुख और दुख आपने क्रिएट किया है अपने माइंड के थ्रू, किसी ने नहीं किया, नो बॉडी हेल्प। तो अब ये फिर इच्छा जो है वो खत्म नहीं होती। तो इच्छा अगर पूरी हो गई तो देयर इज एन अदर इच्छा, डिजायर। अगर नहीं पूरी हुई तो वी मेक एन अदर एफर्ट विच इज अगेन ए डिजायर कि शायद इस बार ठीक हो जाए। सो वी कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ डिजायरिंग, डिजायरिंग एंड डिजायरिंग, एंड 50% desires are fulfilled, 50% are not। तो जो 50% नहीं फील हुई और हो रही, वो आपका दुख है, वो सफरिंग है, इमोशनल सफरिंग है, मेंटल सफरिंग है, सोशल सफरिंग है। पीपल देखते हैं कि भी इसके पास 2001 का मॉडल है, अब 2024 हो गया, तो लोग आपको एक्सेस करते हैं। तो ये सुख दुख इस स्टेट ऑफ माइंड में बहुत है। So जब our emotional body, we have three types of body: physical body, emotional bodies, and spiritual body, right? तो ये इमोशनल लेयर जब हमारी अपसाइड होती है, डाउन, तो वी आर वेरी दुखी, बड़ा सफर करते हैं। और इसी स्टेट ऑफ माइंड में जब इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड इज डिस्टर्ब्ड, then we become health wise not healthy. Immune system is compromised, sleep is compromised, digestive system is compromised, and all other ailments which are waiting for outside atmosphere, we give the invitation and they enter in the body. So that is a very bad situation. Because आप भाग सकते नहीं कि मैं अब दुखी हूँ मैं भाग जाऊँ, नो, यू हैव टू वेट टिल योर एक्सपायरी कम्स। तो उसमें इस स्टेट ऑफ माइंड, आई एम जस्ट पुटिंग वेरी कॉमिकल वर्ड सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, इस स्टेट ऑफ माइंड में बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। तो इसको कहते हैं राजसिक स्टेट ऑफ माइंड। ऐसे जो एक्शन है, जो एक्टर जिसका माइंड राजसिक है, वो इस स्टेट ऑफ माइंड में बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है उसको। और इसमें है पाप और पुण्य, ये जो है हिस्ट्री रिकॉर्डेड होती है कि आपने, जैसे हम कहते हैं कि जब हम जाएंगे तो वो प्रोग्राम हमारे साथ जाएगा जो हमने किया इन ए सटल फॉर्म, एंड देन इट स्टार्ट्स वर्किंग इन द प्रोस्पेक्टिव मदर्स वूम इन द फॉर्म ऑफ द चाइल्ड। और उस चाइल्ड का जब वो चिप जो है, व्हेन इट गेट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपैटिबिलिटी, देन इट स्टार्ट्स फंक्शनिंग।
5 ब्रदर हैं, 5 डिफरेंट हैं, 5 सिस्टर्स हैं, 5 डिफरेंट हैं, एक ही पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, एक ही पेरेंट्स के थ्रू आते हैं. So that is how it works. The third stage of mind is the तामसिक state of mind. तामसिक state of mind में intentionally or unintentionally we do anti-legal things. हमें पता भी है किसमें इस कैटेगरी में आते कौन है. ड्रग डीलर्स, मर्डरर्स, रेपिस्ट, petty thieves, shoplifters, right? किसी की इमानत में खयानत डालना, इट कम्स हियर कि भाई मैंने आपने मुझे ए ने बी को $1,000 दिया कि ये रखना, मैं सुबह आके लेता हूँ. वो लेने गया तो आपने कहा मेरे पास तो आपने दिया ही नहीं है, राइट? इस टाइप की चीजें लोग करने लग जाते हैं. तो इस टाइप के जो एक्शंस हैं उसमें कोई ऑप्शन नहीं है. वो बैड एक्शंस हैं, बिल्कुल टोटली बैड एक्शंस हैं, उनके रिजल्ट बिल्कुल टोटली बैड हैं. तो जो लोग इस शरीर को छोड़कर सारी उम्र यही पे, एक तो पहले यहाँ सफर करते हैं ऑन दिस प्लेनेट, दे एंड अप इन जेल, और इफ दे आर आउट ऑफ जेल देयर में बी 500 security guards protecting him. He may have a very big bungalow, but he is not sleeping. There are 500 security people who are protecting him. So that is, we see every day, drug dealers हैं, rapist को पता है कि it's a bad act, but he still does. Shoplifter को पता है कि there are security cameras all around, but he still does. And these things, a person when leave this planet, because we are all visitors, but the visitors, nobody has permanent residency. So when we leave, then the chip on which the bad things are recorded forces that guy, that Atma, not to get in the human form. Because there are 84 लाख जोनियां हैं, 8.4 evolutions. वो किस जोनी में जाके पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता. बनेगा तो बड़े मिलियन ईयर्स लगेंगे. ह्यूमन बीइंग बन के उसने जो किया तो वो इतना बैड था कि he lose the opportunity. So in this state of mind, there are people, but they don't get this second chance to evolve in a human being and come on this planet. तो इस planet पे वही लोग आते हैं, वही लोग जो the creation give another chance. You are in the human form. This is the apex point of creation. Do the apex actions, best actions. So अगर नहीं किए तो दैट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन. कर्मों की थ्योरी हम कहते हैं जो कर्मों का फल है. तो जिनके कर्मों का फल ठीक नहीं है, दे हैव टू पे द प्राइस. दे कैन नॉट रन अवे. देयर इज नो फ्री लंच. सो जिनके बैड एक्शंस हैं, दे कम बैक अगेन. एंड उसमें उनकी जो लेके आते हैं अपने साथ इन ए सटल फॉर्म, वो जो प्रोग्रामिंग है, व्हेन इट गेट्स द कंपैटिबिलिटी, इट स्टार्ट फंक्शनिंग. तो अगर तो उसको ये प्रारब्ध जो 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 हम डेस्टिनी जिसको कहते हैं, डेस्टिनी हम साथ लाते हैं. वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बैड कर्म भी हो सकते हैं, बट दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द ह्यूमन फॉर्म. तो नो ह्यूमन फॉर्म में आके यू हैव द फ्रीडम. मैन इज बॉर्न विद द विल ऑफ गॉड. जो ईश्वर कर सकते हैं, वाहिगुरु कर सकते हैं, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, but I have to make the effort. I have to make the effort. But that is why this is a golden opportunity. तो जिस ह्यूमन फॉर्म में हम आते हैं, हमारे साथ वो अच्छे बुरे कर्मों का फल भी है जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं. बट दैट इज ओनली 0.1%. बाकी 99% वी क्रिएट अनदर डेस्टिनी. तो अगर जिनको इस बात का पता है कि मैं आई एम क्रिएटिंग माई ओन डेस्टिनी, और ये अपॉर्चुनिटी चली गई, तो पता नहीं मैं किस लाइन में जाके लगूंगा. देयर इज 8 पॉइंट, हाथी बनूंगा, शेर बनूंगा, घोड़ा बनूंगा,
सरपेंट बनूंगा, कीड़े मकोड़े बनूंगा। तो ये लोग समझते नहीं है, वो समझते हैं दिस इज ए गपबाजी, एंड जो होगा देख, दिस लाइफ इज टू एंजॉय, लाइफ इज वन टाइम। भाई साहब, लाइफ इज नॉट वन टाइम। अगर लाइफ इज वन टाइम होती तो दुनिया खाली हो जाती, मिलियन ईयर से लोग मर रहे हैं, राइट? देन द वर्ल्ड शुड बी एम्प्टी। लेकिन एम्प्टी तो जितने आप करते हो, हॉस्पिटल में, नर्सरी में जाके देखो, वहाँ भीड़ लगी हुई है बच्चे उठाने के लिए। तो ये जो सर्कल है, इट इज ए कार्मिक फिलॉसफी। अगर कार्मिक फिलॉसफी ना होती तो बच्चे ना आते। फिर तो इफ आई से लाइफ इज वन टाइम, तो दुनिया खाली हो जाती फिर, क्योंकि हजारों सालों से लोग मर रहे हैं। सो दिस इज द कार्मिक फिलॉसफी, दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। We will, I mean, try to conclude, but we will revisit this. We should. It's more interesting. I Just just summarized it. एक क्विक क्वेश्चन है मेरा, जैसे वेरी, हाँ जी। जैसे आपने बोला ना अभी कि when you do all these bad things, तो आप इंसान बन के तो नहीं आओगे, या तो घोड़ा बनोगे या स्नेक या जो भी है। बट वो भी कौन डिटर्मिन करता है कि आप ये बनोगे या घोड़ा बनोगे या स्नेक बनोगे या बर्ड बनोगे? हु डिटर्मिन्स दैट? वो कब कैसे होता है? वो ये है, देखो, कोई आप कोई पूछे, इट्स अ वेरी लेजिट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे अब मुझे आप ये पूछोगे, कपूर साहब, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, राइट? दिखाई तो देती नहीं है। तो अब मैं आपको क्या बताऊं? यही बताऊंगा कि भाई, आप थोड़ा स्लिप होके देखो, राइट? फिर पता चलेगा, वही बाथरूम में सारी चीजें वही हैं। स्लिप हुए तो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल यू डाउन, राइट? ये जितनी सृष्टि चल रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, साइलेंट है, श्योर है। एंड ऐसे ही ये जो 8.4 एवोल्यूशंस हैं, आप देखो कि आपके आसपास जो अपने घर में ही, बाकी तो छोड़ो, इतनी सृष्टि है। कारपेट के नीचे, कॉर्नर्स में, आप सीलिंग में, छतों के नीचे, हम तो रह लेते हैं, वो भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। समुद्र में देखो, मिलियंस टाइप की सृष्टि है, एवोल्यूशंस हैं। जंगल में जाके देखो, जहाँ ये पुलिस नहीं है, वो उनका अपना डिसिप्लिन है, कोई कहीं गंद नहीं पड़ा हुआ। देर आर नेचुरल स्वीपर्स। कोई गंद है तो उसकी ड्यूटी है उसको वो खाए, या कहीं और लेके जाए। जंगल में जाके और मीलों मील घूमो, यू विल, इफ ह्यूमन इज नॉट इन्वॉल्व, जंगल इज क्लीन, राइट? तो वो जो सृष्टि में घूम रहा है, और फिर मैं कहूँ कि जी, हाथी कहाँ से आ गया, घोड़ा कहाँ से आ गया? वो इसलिए हाथी घोड़े या बाकी कीड़े मकोड़े बन जाते हैं कि उनको, उन्होंने अपनी लाइफ में, अब देखो डॉग है, राइट? कि पपी है, कितना प्यारा है, दिल में इतना प्यार आता है, राइट? लेकिन वो भी डॉग हैं जो स्ट्रीट डॉग हैं, जिनको मार पड़ती है, जिनको डंडे पड़ते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती। डॉग तो हो ही, राइट? तो उनको तो ये अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। तो डॉग्स में भी कैटेगरीज है, देखो। तो अब देखो, अगर आपने उस डॉग को कंपैशन से ले लिया, और आप उसको पाल रहे हो, सारी चीजें उसकी, उसको भी पता है कौन है मेरा मालिक। हजारों डॉग होते हैं, एक डॉग को आप पिक करते हो। डू यू थिंक इट इज योर चॉइस? नहीं, ये डॉग की भी चॉइस है कि ये बंदा ठीक है, मेरी जिंदगी ठीक निकलेगी, मेरे से और गंदे काम नहीं होंगे, मैं इनकी सेवा करूंगा जितनी। क्यों? डॉग सेल्फलेस सेवा करता है, आपसे ज्यादा कुछ नहीं है, राइट? तो वो सेल्फलेस भाव से आपकी सेवा कर रहा है, दैट गाय विल गेट अनदर चांस। तो बाकी जो स्ट्रीट डॉग है, वो ठीक है, आए गए। ऐसे ही सारी सृष्टि है, इसको इसी ढंग से देखना चाहिए। ऐसे ही हम लोग हैं, जिनको पता है, वो सात्विक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करते हैं, करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम तो यही है और तो कोई है नहीं। तो सात्विक स्टेट जो आपने पूछा है, वो यही है
कि ये तो पक्का है कि 84 लाख जोड़ियां हैं, हर धर्म कहता है, हर फेथ कहता है कि इतनी बड़ी एवोल्यूशन, राइट। तो एवोल्यूशन का मतलब है चेंज। एवोल्यूशन जो होती है उसका इंग्लिश मीनिंग है चेंज, राइट। इज नॉट स्टैटिक, इट इज चेंजिंग। तो जो चेंज हो रही है, 8.4 मिलियन चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये उसमें हम भी आते हैं, वी आर ए पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, राइट। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपने दोबारा अपॉर्चुनिटी, और ये जो अपेक्स पॉइंट है एवोल्यूशन का, इसमें ये है, ऑप्शन है आपको टू ब्रेक दिस साइकिल, नॉट टू गो इन द लाइन ऑफ 8.4 मिलियन। और उसमें ये है, योगा है, मेडिटेशन के थ्रू आप परफेक्शन लाओ माइंड की, फोकस करो माइंड की, ब्रिंग द माइंड इन द सात्विक स्टेट ऑफ माइंड, ब्रिंग द कंपैशन, एम्पैथी एंड सेल्फलेसनेस अपने डेली लाइफ में। तो ये जो ईश्वर ने लाभ बनाए हैं, वाहिगुरु ने लाभ बनाए हैं, जो गेट द अपॉर्चुनिटी, जिसको मोक्ष कहते हैं, then this body is dissolved at the right time, and then under the karmic process we will never come back because there's आपकी evolution ही खत्म हो गई। तो you go out of the circle of the evolution, जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो this is what the law of karma is, but it is more than that. We will revisit this issue, Yes. हमने पहले भी किया, Yeah. and आपने क्वेश्चन, आपका बड़ा वाइज क्वेश्चन था, and I tried to explain in detail. Very I thought it was good question, so मैंने पूछा, लेकिन आपका टाइम हो रहा है, I know you have to go some, you have a commitment कि आपके प्रेजेंटेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी वेट कर रहे हैं, हमारा ही प्रोग्राम आपके बगैर नहीं होता, तो वो भी वेट कर रहे हैं आपकी। तो that was very nice of you that you took some time and you came in spite of the fact that you had some other commitment. तो मैं इस बात में थैंक्स करती हूँ निरंजन जी। तो इस टॉपिक को like I said, थोड़े क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, and I will appreciate everybody who's watching today to come up with some questions. But this is a very, very important topic. Very और important. इस टॉपिक में बीना जी, there are many questions. Yeah. The more we ask, the more Pandora box opens. Right. More knowledge we can get. The more questions we ask, the knowledge we'll get about this thing. And so thank you, Nirendra ji. Thank you, ji. Thank you. Thank you, Veena ji. Thank you for arranging this session. And due to time constraint, we are concluding little early. Yeah, no, वही इसी करके कुछ आपने कहा था, आपने जाना है, और I know, I understand कि वो वेट कर रहे हैं आपकी। तो you know, then we'll touch the topic again very soon. और and thank you so much नरेंद्र जी। फिर मैं इनको थोड़ा इनके बात करती हूँ सबसे नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोग्राम। Thank you. Thanks. Bye. So I will just say that you know we are having next week. जा सकते हो आप नरेंद्र जी? Yeah. You could go. But next week we are having a very nice program with Shali ji and Neelam ji, and मेरे साथ हम तीनों कर रहे हैं प्रोग्राम, एक गाने का प्रोग्राम, you know, singing program on Wednesday, which happens to be September 18th. A lot of birthdays are coming up also this weekend. Today's already the 4th. Today's what? The 13th. So in a few days there are going to be birthdays coming up and all that. So we will talk about that. And next week, don't forget to come. Same time, same place. Please join us on September 18th and September 18th and 20th next week. I will let you know what the 20th is. So thank you very much once again. Have a wonderful day and have a wonderful and a safe weekend. That's the main thing. Very important. Drive carefully and enjoy with your families. Okay, ji, Narendra ji, thank you, ji, thank you. Thank you, Vinay, thank you. And I must admire you again and again. Your efforts to educate the community for their better living is par excellence. Continue, please continue. We are with you. Thank you so much, Narendra ji. चलो आप जाओ, अब मुझे आपकी फिक्र लगी हुई है। मनी जी, she must be waiting for you. Thank you. Okay, yes. Jai Shri Krishna. I might come later on. देखो, I might come. Okay जी, bye. Bye.